جنگ میں سیوریج مسائل نے شہریوں کا جینا محال کر دیا، گلی محلے سیوریج کے پانی میں ڈوب گئے۔ تیزی سے اوپر جاتی پاکستان کی سیوریج مسائل میں مسلسل اضافے سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ گلشن کالونی میں مسلسل پانی جمع رہنے سے آٹو مکینک کے گھر کی دیوار گر گئی، پانی گھر میں داخل ہو گیا، کم سن بچے اور اہل خانہ مشکلات کا شکار ہیں۔ مکینک کی جانب سے امداد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایک گلشن کالونی میں ایک اسکول ہے ہمارا، تو 550 تقریباً یہاں بچے پڑھتے ہیں، تو آج اسی پانی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اسکول میں حاضری نہیں دے سکے، اسکول بھی بند ہے اور ہماری مساجد ہے، یہ 7 مساجد بھی بند پڑی ہے، 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، پانی سے لوگ جو پریشان ہیں۔ گلشن کالونی میں پانی جمع رہنے سے بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں، دوسری جانب نمازیوں کا مسجد تک پہنچنا مشکل ترین مرحلہ بن گیا ہے۔ علاقہ میں گٹروں کے ڈھکن بھی نہیں ہیں، حادثات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ کان کی حالت خستہ ہو رہی ہے، اندر سارا فرش بیٹھ گیا سارا پانی کی وجہ سے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ سب پریشان ہیں اسی پانی کی وجہ سے۔ یہاں 7 سکول ہے، منیر اسکول کے کم سے کم 500 بچہ پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارے چوک کے اندر عرصہ 2 مہینے سے گٹر کا ڈھکن گر چکا ہے۔ ہم بارہا یہ جو اکرم صاحب ہیں سب انجینئر اور اسحاق صاحب سینٹری انسپیکٹر کو ہم اطلاع دے چکے ہیں، لیکن ہماری بات کا کوئی ان پہ اثر نہیں ہو رہا۔ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کے مطابق ایک ماہ کے دوران سیوریج سے ستائے 300 سے زائد شہریوں نے شکایات درج کروائیں۔ سول لائن، ٹوبا روڈ، گلشن کالونی زیادہ متاثرہ علاقوں میں شامل ہیں۔ شہری منتخب عوامی نمائندوں سے نالاں ہیں، کہتے ہیں کم سن بچے تعفن اور مچھروں کی بہتات سے بیمار رہنے لگے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 چھنگ۔ موجے ختم، پڑھائی شروع، موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولز میں نئے تعلیمی سیشن کے ساتھ بچوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد چیک کرنے کے لیے CEO ایجوکیشن علی احمد سیاح نے اسکولز کے سرپرائز وزٹ کیے۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد تعلیمی ادارے کھلے تو بچوں کی اسکولز میں آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اسکول سربراہان، اساتذہ اور اسکاؤٹس نے طلبہ کے ماسک اور ٹیمپریچر چیک کیے۔ گیٹ پر ہی نئے سیکشن میں طلبہ کو ویلکم کیا گیا۔ اللہ کا شکر ہے اور میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا 1 ماہ کی ویکیشن کے بعد جو ہے نا یہ دوبارہ ری اوپن کر دیے، اور لوگوں کو کیونکہ خدشات تھے کہ شاید یہ اسکول جو ہے نا ری اوپن نہیں ہوں گے، لیکن موسم بھی خوشگوار ہے، لوگ آج ہم ویلکم بھی کر رہے ہیں، بچے بھی تقریباً جو ہے ہمارے 95% جو ہے نا وہ پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو 1.5 ماہ ہے یہ اسپیئر جو ہے کیا ہے چھٹیوں سے ہم نے، یہ بچوں کے کام آئے گا۔ ہم ان میں جو ہے وہ بچوں کی جو پرانی کمی تھی، جو ڈیفیشنسی تھی، اس کو ہم ریموو بھی کریں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے بھی، کیونکہ ہمارا سیشن بھی تھوڑا سا لیٹ شروع ہو رہا ہے، اور وہ جو 1.5 ماہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم کور بھی کریں گے۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات شروع کروں گا کہ کرونا کے دوران SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے ہمارے اسکول جو ہیں وہ ری اوپن ہو گئے ہیں، اور ہمارا آج اسکول میں پہلا دن ہے۔ موسم بھی بہت خوشگوار ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسکاؤٹ ہیں اور ہم بچوں کو ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اسکول میں آئیں اور دوبارہ جو ہے وہ اسٹڈی کو ری اوپن کریں۔ کورونا SOPs کے تحت 50% بچوں کو الگ الگ دنوں میں بلایا گیا ہے۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیاح نے پہلے روز اسکولز کے سرپرائز وزٹ کیے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ گورنمنٹ کا دوسرا اسکول تھا، وہاں پر میں نے بچوں کو ویلکم بھی کیا، بلکہ ان کو فلائرز پیش کیے گئے۔ یہاں پر بھی ہم نے بچوں کو ویلکم کیا ہے۔ اس میں ہمارے کچھ نئے بچے بھی آ رہے ہیں جو نیو ایڈمیشن کے ساتھ ہیں، اور چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بیک اپ کرنا بہت ضروری ہے، ان کے اندر یہ جو کورونا کا فیئر ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، میرے تمام فیلڈ افسران جو ہیں وہ اس وقت اسکولز کے اندر وہاں پر بچوں کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے۔ میں گورنمنٹ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنا سیشن جو ہے وہ ڈے 1 سے سٹارٹ کر چکے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ پڑھائی کا سلسلہ شروع ہونے پر خوش ہیں۔ امید ہے اس سیشن میں دوبارہ تعلیم کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ آج نیا سیشن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھل گئے ہیں۔ میں بڑی خوشی ذاتی طور پہ محسوس کر رہا ہوں، اور بچوں سے محفوظ گفتگو ہو کے مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا اور ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ جی، آج سے الحمدللہ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور تمام بچے اگلی کلاسز میں پروموٹ ہو چکے ہیں، اور 100% آج اب طلباء کی اٹینڈنس دیکھنے کو مل رہی ہے، اور بچے بڑے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ حصول علم کے لیے یہاں پہ ادارے میں پہنچے ہیں،
और उनको आज वार्मली वेलकम कहा गया है। तलबा का कहना था कि अगली क्लासेस में प्रमोशन के साथ दुआ गो हैं कि कोरोना का खात्मा हो और पढ़ाई जारी रहे। हमारा नया साल जो से शुरू हो चुका है, नया तलीमी सेशन, हम 9th में प्रमोट हुए हैं, हम स्कूल आए, हमें बहुत खुशी है कि जो सा ये छुट्टियों का मामला है ये ख़त्म हो चुका है और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि जो सा कोरोना है हमारा मुल्क कोरोना फ्री हो जाए। हम बहुत खुश हैं कि हमारा नया सेशन शुरू हो गया, क्योंकि पिछला सेशन तो कोरोना की वजह से इफेक्ट हो गया था और हम बहुत उम्मीद है कि इस साल हम खुश होकर पढ़ेंगे और कोरोना की वजह से अब स्कूल नहीं बंद हो गए। क्लासेस में तलबा को समाजी फासले के साथ बिठाया गया, जबकि वैक्सीन ना करवाने वाले असातिज़ा को वैक्सीन लगवाने तक स्कूल आने से रोक दिया गया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। गुज़श्ता साल तालीमी इदारे जो हैं वो खासे डिस्टर्ब रहे कोरोना के बायस। नए तालीमी सेशन में तलबा और असातिज़ा उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से दोबारा उनकी तालीम में खलल नहीं पड़ेगा और वो भरपूर तालीम का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, एनसीओसी ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। औकात कार रात 10 की बजाय 8 बजे कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया गया है। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से फैसले किए गए। फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में बंदिशें लगेंगी। इतला कल से 31 अगस्त तक होगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि एनसीओसी ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मार्केट हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। औकात कार रात 10 की बजाय 8 बजे कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया गया। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से फैसले किए गए हैं। फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में बंदिशें लगेंगी। इतला कल से 31 अगस्त तक होगा। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, एनसीओसी ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। औकात कार रात 10 की बजाय 8 बजे कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग बंद करने का फैसला किया गया। सरबराह एनसीओसी असद उमर कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी से फैसले किए गए। फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में बंदिशें लगेंगी। इतला कल से 31 अगस्त तक होगा। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, एनसीओसी ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर दिया। मार्केट्स हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। औकात कार रात 10 की बजाय 8 बजे कर दिए गए। महकमा रेलवे की गफलत, रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए दर्द सर बन गई। स्टेशन पर एडवांस रिजर्वेशन काउंटर बंद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। ट्रेनों में पानी भरने वाले हाई ड्रिल मशीनों के पाइप गायब होने लगे। पाइप गायब होने से मुसाफिर ट्रेनों में पानी की सहूलत से भी महरूम हो गए। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रेनों में पानी की सहूलत को यकीनी बनाया जाए। ऐसे ही है कि ट्रेनों में पानी तो ना तो वॉशरूम के लिए है और ना ही पीने के लिए है। ये जो सी पाइपलाइन ये बंद पड़ी है ना, इनको चाहिए कि ये पाइपलाइन ऑन करें और ट्रेनों में पानी इनके दिया जाए, वॉशरूम के लिए भी और पीने के लिए भी। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पानी पीने के लिए मिलता ही नहीं है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके इन पाइपलाइन को जो सी बिछाई हुई इन्होंने, इनको ऑन किया जाए और ट्रेन में पानी दिया जाए। टिकट प्रिंटर्स की खराबी के बायस अक्सर एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर भी बंद हो गया है। मुसाफिरों को एडवांस बुकिंग करवाने में भी मुश्किलात होने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि एडवांस बुकिंग ऑफिस को जल्द फाल बनाया जाए। काफ़ी टाइम से आए हुए हैं इधर, वो कह रहे हैं कि जब ट्रेन आएगी उस वक्त आपको रुक लेंगे। अगर वो ओपन हो जाए तो टाइम से मिल जाए टिकट और आसानी हो जाएगी। वैसे और मुश्किल यही है, काफ़ी मुश्किलात होती है। इसके अलावा काफ़ी टाइम से हम 2-3 घंटे हो गए, बहुत मुश्किल हो रही है। स्टेशन के दरीना मसाइल महकमा रेलवे की नाकस कारकर्दगी का सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन चौहान के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद और ख़राब मीटर्स की तब्दीली के लिए फेस्को का बड़ा फैसला। डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। फेस्को 7 लाख नए मीटर्स खरीदेगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से, जो उवैस बताएगा।
जी बिल्कुल, सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद और ख़राब मीटर्स को तब्दील करने के हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से बड़ा फैसला जो है वो इख्तियार किया गया है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से सिंगल फेज़, डबल फेज़ और कमर्शियल 7 लाख के करीब जो हैं वो नए मीटर्स ख़रीदे जाएंगे और इसके साथ साथ 50 KVA के 1400 ट्रांसफार्मर्स और 200 KVA के 900 ट्रांसफार्मर्स और 100 KVA के 800 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी की जानिब से खरीदने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से जो टेंडर है वो भी जारी कर दिया गया है। इससे मुतल्लिक फेस्को हुकाम का यही कहना है कि सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र और डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शन के जो मुंतज़िर सार्फिन हैं उनको सहूलत फराहम करने के हवाले से जो है वो कंपनी की जानिब से अहम फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र 7 लाख से ज़ायद जो हैं वो डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर्स ख़रीदे जाएंगे ताकि जो सार्फिन हैं उनको सहूलत फराहम की जा सके और सार्फिन की बढ़ती हुई डिमांड के मुताबिक नए कनेक्शंस की सहूलत फराहम की जा सके और जिन सार्फिन के मीटर्स ख़राब हैं वो माहानावार भी तब्दील किए जा रहे हैं, हफ्तावार भी तब्दील किए जा रहे हैं, तो उनकी तादाद को पूरा करने के लिए नए मीटर्स खरीदे जा रहे हैं ताकि सार्फिन के जो मसाइल हैं उनको दूर किया जा सके और सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक मीटर्स जो हैं उनके जो है वो नए कनेक्शंस लगाए जाएं और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के माहानावार रेवेन्यू में बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, DPO राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्संग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से जो इंतजाम पे जो है आज मीटिंग का अहतमाम किया गया, जिसमें तमाम जो डिपार्टमेंट के सरबराहान भी मौजूद थे। इस वक्त मेरे साथ दोनों शख्सियात मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर मौजूद है। उमर साहब, किस तरह देते हैं इंतजाम के हवाले से, क्योंकि मुहर्रम उल हराम की आमद है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रूट्स का विजिट किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक उसमें दी जाएगी। आज तमाम लोगों की मीटिंग, हमारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग थी महकमों की, जिसके अंदर तमाम महकमे मौजूद थे और उनको ये डायरेक्शन है कि रूट का विजिट करें, बिजली की तारों का खास ख्याल रखें, सुई गैस के जहाँ जहाँ कनेक्शन है उनको भी देखें, जहाँ जहाँ CCTV कैमरे लगने हैं उनको देखें, वॉक थ्रू गेट जहाँ लगने हैं, जहाँ रेजर वायर्स लगनी है। इसके साथ साथ जो भी पैच वर्क रिक्वायर्ड है, सफाई का, रोड मटेरियल जो पड़ा है या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है उसकी रिमूवल के लिए, और इसके साथ साथ जो भी हमारी इमाम बारगाहों के मुतवल्ली हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा ताकि जो भी सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं उनके लिए भी पुलिस के साथ और ACs जो हैं वहाँ पर उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर की और उसके साथ साथ मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। उमर साहब, किस तरह रहते हैं? सबसे अहम जो है सिक्योरिटी के इंतजाम पे होता है, क्या इंतजाम अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मुहर्रम उल हराम साल 2021 का जो है इसका सिक्योरिटी प्लान जो है वो ज़ोरों शोर के साथ जारी है। जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले साल फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में दिए गए और कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो इस दफ़ा भी हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा बेहतर इंतजाम किए जाएँ, सिक्योरिटी को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग और हमारा जो CCTV कैमरास का बिल्डअप है, सेफ सिटीज़ ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, अब हम उसको डवटेल करेंगे। बाकी अपने जो CCTV कैमरास मुहर्रम उल हराम के दौरान लगते हैं उनको हम डवटेल करेंगे ताकि बेहतर सिक्योरिटी फराहम जो है वो की जाए। तो अगर आप मजमूई तौर पर अगर हमारा मेजर लैंडमार्क अचीवमेंट इस साल के मुहर्रम में देखेंगे वो ये होगी कि CCTV के कैमराज और प्लस जो मुहर्रम के कैमराज हैं इनको मिला के डबल सर्वेलेंस है हमारा मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा मुहर्रम उल हराम के दौरान इंशाल्लाह। इसके साथ साथ तमाम तर मीटिंग्स, जिसमें अमन कमेटी की मीटिंग है, तमाम इदारों के साथ मीटिंग है, वो भी उनका इनेकाद हो चुका है और हमारी कोशिश है कि यकम मुहर्रम उल हराम के आने से पहले पहले तमाम तर मसाइल को हल कर लिया जाए और पूरे ज़ोर शोर के साथ यकम मुहर्रम से ही अच्छी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की जाए। जी बिल्कुल, इसने बात सुनी। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। टाइप कॉलोनी शरीफ चौक में सीवरेज के मसाइल गंभीर होने लगे। गुज़श्ता कई रोज से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी ना निकाला जा सका। करीबी मिडिल स्कूल में आने वाले बच्चों को भी मुश्किलात का सामना, पूरा इलाका नो गो एरिया बन गया। शहरियों ने फौरी इस्लाहो अहवाल का मुतालबा कर दिया है। आपको इस हवाले से बताते चले, डी टाइप कॉलोनी शरीफ चौक में सीवरेज के मसाइल गंभीर होने लगे। गुज़श्ता कई रोज से खड़ा सीवरेज का गंदा पानी ना निकाला जा सका। इसी पर बात करेंगे इमरान असलम से। इमरान, बताएगा शहरियों का मजीद क्या कहना है?
तो वेस्ट फैसलाबाद मिशन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। फैसलाबाद के डी टाइप कॉलोनी के मुनहक्का इलाके, शरीफ चौक, डॉक्टर चौक, फौजी चौक समेत दीगर जो इलाके हैं वो सीवरेज के पानी में डूब चुके हैं। ताहाल यहाँ निकासी आब ना हो सका। डी टाइप कॉलोनी और शरीफ चौक के रहायशी यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे थे। आज उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, ये जो सीवरेज का पानी है ये कब से यहाँ पे खड़ा है कि आपने वासा काम को जानब को इतला दी है कि निकासी आब ना हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूं। उसके बाद ये सिचुएशन सीवरेज की अरसा 3 माह से ऐसे ही है। लोग अपने अपने घरों में महसूर हो चुके हैं, ठीक है। और हेपेटाइटिस सी और दूसरा डेंगू फैलने का अंदेशा है। मुतअद्दिद मरतबा हमने MNA मियाँ फरख हबीब साहब को भी दरखास्त की है, मियाँ वारिस साहब को की है, MD वासा को की है, लेकिन वो हमें हर मरतबा लॉलीपॉप दे के वापस भेज देते हैं कि आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा। जिसकी वजह से इस सीवरेज की परेशानी की वजह से लोगों के घरों के बैठने का भी अंदेशा है। और डी टैप में 2-3 मकान ऐसे हैं जिनकी बुनियादों में पानी पड़ चुका है और वो बैठ चुके हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सर्वे भी करा सकता हूँ। अच्छा ये आप बताइएगा कि इलाके तो डूब चुके हैं। आपने जो मियाँ फरख हबीब साहब को कहा कि आप MD वासा को बोले हैं, वाइस चेयरमैन वासा को बोले हैं, उनकी जानब से क्या रद्द अमल है कि विजिट किया उन्होंने? कोई विजिट नहीं जी, कोई रद्द अमल नहीं। 1-2 बंदे इन्होंने छोड़े हुए हैं जो रोज नई से नई फार्मूले और नई से नई हमें बात कह जाते हैं। हल कोई नहीं निकाल रहा। ना हम गली से निकल सकते हैं, ना सड़क से निकल सकते हैं। ईद के दिन नमाज के लिए नहीं जा सके, दूसरे दिन जुमे के दिन नमाज के लिए नहीं जा सके। अब तो स्कूल खुल गए हैं, स्कूल के बच्चे सारा दिन इन्हीं पानियों में, गंदे पानियों में गुजर के गए हैं, आते हुए जाते हुए। लोग परेशान हैं, बेहाल, इनको तरस ही नहीं आ रहा। पता नहीं किस मट्टी से बने हुए हैं, क्या करना चाहते हैं हमें ये खुद ही बता दें, हम खुद अपना आप इनके हवाले कर देते हैं। जो करना चाहिए कर सकते हैं भाई। हमारी गलती सिर्फ यही है कि हमने इन लोगों को वोट दिया, सपोर्ट की, बेलोस हो के इनके साथ चले और ये हमारा ये हाल कर रहे हैं। इतना तो दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता, वो भी रहम कर देता है, लेकिन इनके नज़दीक इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई रहम नहीं है। पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं। हमारे लिए ये बैठे हुए ना ऐवानों में, तो ये हमारा ये हाल है तो क्या करेंगे ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हम इनके साथ क्या करें? चलो इन्हीं पे फैसला छोड़ देते हैं। हर रोज दिन में 5 बार, 2 बार, 3 बार जब भी बाहर निकले, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं पानियों में, छोटे छोटे बच्चे पानियों में गिर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हमारी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं। हर रोज नई से नई फार्मूले, नई से नई बात, नई से नए धोखे, नई से नए फ्रॉड। कोई भी आज तक कोई हल ही निकाल सका। 3 से 4 माह हो गए, 3 से 4 माह हो गए। 1 दिन का लगा लें, 2 दिन का, 10 दिन का, 3 माह हो गए। एक दिन बारिश होती है, 15-20 दिन, 1 माह गुजर जाता है, कोई भी नहीं सुनता, ना कोई आता है। किसी ने चक्कर लगाने की भी जहमत गुबारा नहीं की भाई। मसाइल दूर करने तो दूर की बात है। तो घरों में पानी आके खड़ा हुआ है, इतने शहरी परेशान हैं। घर जो हैं वो कई घर ऐसे हैं जिसकी आपको फुटेज दिखा सकते हैं, जो घर पानी खड़ा हुआ है और ये पानी गटरों का पानी है। अगर बारिश का पानी हो तो वो बर्दाश्त हो जाता है, ये तो गटरों का पानी है, कितनी बीमारियां जो फैलेंगी। ठीक है, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इसका जो है ना कोई बेहतरीन हल किया जाए। जी बिल्कुल, ये डी टाइप कॉलोनी में जो शरीफ चौक के रहायशी है और दीगर जितने भी चौक है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये गटरों का पानी है और ये सीवरेज का पानी है। शहरियों को कहना है कि 3 माह गुजर चुके हैं। ताहाल MNA फरख हबीब साहब और उसके साथ वारिस अजीज जो MP हैं, MD वासा, वाइस चेयरमैन वासा को भी मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन ताहाल यहाँ से सीवरेज का पानी निकास नहीं कर सके। दूसरी तरफ बात करें यहाँ जो करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेरे सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए आला सदा का इजलास हुआ। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड जफर सरवर इकबाल की भी शिरकत। जफर सरवर ने वज़ीर-ए-आज़म को मसाइल पर ब्रीफिंग देते हुए टेक्सटाइल पॉलिसी, रॉ कॉटन और SMEs के मसाइल पर फिलफोर एक्शन का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल बताएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बरामदात बढ़ाने के लिए हंगामी और आला सतह की इजलास जो है इस्लामाबाद के अंदर आज बुलाया गया, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ एक्सपोर्टर और टेक्सटाइल पॉलिसी काउंसिल हेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जफर इकबाल सरवर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। और इसमें पाकिस्तान भर से बरामदात के शोबे से मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो भी शरीक थे, जिसमें मशीर कौम रज़ाक दाऊद भी शरीक थे। जफर इकबाल सरवर ने टेक्सटाइल के हवाले से बात करते हुए इमरान खान की तवज्जो मबजूल करवाई कि टेक्सटाइल पॉलिसी 2 साल से पेंडिंग पड़ी है, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जबकि SME का मसला उठाया
اور लिक्विडिटी क्रंच के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कही कि इस वक्त हमें शदीद लिक्विडिटी क्रंच का जो मसाइल हैं और ख़ास तौर पे SME को उसके मसले दरपेश, तो उसके ऊपर काम किया जाए ताकि इसको बढ़ाया जा सके और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इन चीज़ों के ऊपर गौर बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर फ्रेड रेट्स के ऊपर जो तवज्जो है वो मबजूल करवाते हैं। ज़फ़र सरवर ने कहा कि ये हमारा एक अहम सेक्टर है टेक्सटाइल का, जिसके तमाम तरसीलात हैं वो इसके ऊपर मुनहसर हैं। अगर बाहर से रॉ मटेरियल आना है तो उसकी कीमतों के अंदर भी इसका असरात मुरतब होते हैं, और फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज और बढ़ती हुई कीमतें और कम पैदावार को निशानदेही की, जिस पर इमरान खान का कहना था कि टेक्सटाइल सेक्टर बिलाशुबा सबसे अहम सेक्टर है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये बरामदात में सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और आने वाले दिनों में उन्होंने मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद को भी कहा कि कुछ रोज़ के अंदर जो एक्शंस हैं वो होते नजर आएँ और एक्सपोर्टर्स को यकीन दहानी करवाएं कि बिलाशुबा उनकी एक्सपोर्ट्स, बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स के अंदर किरदार को सराहा भी जाएगा और जो मुमकिन सहूलियात और उनके साथ ताउन किया जा सकता हो। बहुत शुक्रिया बिलाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा। अब्दुल रज़ाक ने ट्वीट पैगाम में बताया कि एक्सपोर्ट माह जुलाई में 2.35 अरब डॉलर रही है, जो कि गुज़श्ता साल जुलाई के निस्बत 17.3% ज्यादा है। फैसलाबाद के सनतकारों का इस पर मजीद क्या कहना था, मजीद तफसीलात जानते हैं शराज पर से। जी शराज बताएगा। गुज़िश्ता साल एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो इस साल अगर उसका कंपेयर किया जाए तो उसमें 17.3% जो है उसमें इजाफा हुआ है, जिस पर अब्दुल रज़ाक दाऊद जो कि मशीर बराए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किया है। इस ट्वीट पैगाम में और ख़ास तौर पर इस ग्रोथ को देखते हुए इस वक्त सनतकारों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ काशिफ ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान हॉज़री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साबिक चेयरमैन हैं। खैर साहब, एक्सपोर्ट तो बढ़ रही है लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो कई फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिससे आप आज भी महरूम हैं। आपके कांस्टेंट बिजली के रेट नहीं मुकर्रर हो रहे, आपके गैस के कांस्टेंट रेट मुकर्रर नहीं हो रहे, क्या कहना चाहेंगे सवाल? देखें शराज, लास्ट वीक में हमने ये ऑलरेडी, जैसे कि आपको पता है कि यान का जो क्राइसिस है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं नो डाउट बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं जिनको लेते हुए ये एक्सपोर्ट बढ़ी है। अदरवाइज़ अगर गवर्नमेंट का साथ ना हो तो ये एक्सपोर्ट कभी भी ना बढ़े। तो सबसे पहले तो रज़ाक दाऊद साहब को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। नो डाउट डिफरेंट बट्स उसके साथ साथ हैं, बिजली के रेट्स होने वाले हैं, गैस के जो रेट्स हैं वो हमें कोई ऑलवेज जब भी हम उनके साथ टेबल डिस्कशन पे बैठते हैं तो ये डिमांड करते हैं कि खुदारा 5 साल की हमें पॉलिसी दी जाए ताकि हमें ये पता हो कि आने वाले टाइम में हमने बिजली को किस रेट पर रखना है, गैस की हमें प्राइस क्या होनी है और हमने अपनी कैलकुलेशंस कहाँ पर करनी है। अभी रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, उसका भी रज़ाक दाऊद साहब से हमने ईद से पहले भी डिस्कशन हुई है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री के हवाले से, कोई चीज़ कांस्टेंट नज़र क्यों नहीं आ रही है? ना बिजली गैस के प्राइसेस कांस्टेंट नज़र आते हैं 5 साल 6 साल 7 साल के लिए, ना आपके रिबेट्स का पता है कि कब मिलने हैं कब नहीं मिलने हैं, ना आपके जो कल्टिवेटेड एरिया है उसके हवाले से पता लगता है। तो कॉटन की भी शॉर्टेज मुमकिन तौर पर आगे होने जा रही है। नहीं, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जब रज़ाक दाऊद साहब से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला था कि ये डे टू डे इशूज़ हैं। नो डाउट हमारा बिजली गैस का इशू जो है या रिबेट्स का इशू है, ये यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन वो रज़ाक दाऊद साहब ने यही बोला था कि टाइम के साथ साथ हर चीज़ ग्रेजुअली हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे होती चली जाएगी। अभी जो सबसे बड़ा इशू है गैस बिजली से बड़ा इशू जो है वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज बना हुआ है। तो नो डाउट गवर्नमेंट की इंटेंशन पॉजिटिव हैं, गवर्नमेंट करना चाह रही है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये माफियाज, बिजली के रेट्स, गैस के रेट्स, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। और ये हमारे अंदर, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ $2 बिलियन जो एक्सपोर्ट जुलाई के महीने की है, इसको हम 4 भी कर सकते हैं अगर हमें ये फैसिलिटीज़ और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जो है ये ना हो। फैसिलिटीज़ और सहूलियात जो मिले हैं, ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज ना हो, बिजली और गैस के प्राइसेस कांस्टेंट हों, रिबेट्स टाइम पे मिले, ये 4-5 चीज़ें अगर हो जाए तो जो 20 बिलियन करने का ख्वाब है एक्सपोर्ट का, वो भी। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई का तूफान साल के आगाज ही इदारा शुमारियात की माहानावार तफसीली रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 1.3, SPI के मुताबिक 1.8 और होलसेल के मुताबिक 3.2% महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माली साल का पहला महीना महंगाई का तूफान लेकर शुरू हुआ। जुलाई 2021 माली साल के पहले महीने में 1.3% इजाफा हो गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 1.4 और प्राइस इंडेक्स पर 1.8, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में 3.2% इजाफा हुआ।
चोबा खला मंडी में DAP ब्लैक में फरोख्त होने लगी खाद की कीमतें मजीद बढ़ने से डीलर्स ने फरोख्त रोक दी। ये रिपोर्ट देखिए। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद टोबा टैक्सिंग की गल्ला मंडी में खाद नायाब हो गई। किसान रुल गए। किसान कहते हैं मकई, जवार और कमाद की फसल को खाद की जरूरत है। गोजरा, कमालिया, टोबा और पीर महल में DAP खाद दस्तयाब नहीं। मक्की के लिए DAP चाहिए, बाजरे के लिए चाहिए, कमाद के लिए भी अभी कमाद में भी पै रही है DAP। टोबा में भी पता किया, गोजरा मंडी में भी पता किया, सब यही कहते हैं शार्ट है, मिल नहीं रही, पीछे से आ नहीं रही, कंपनियां महंगी किए जा रही हैं। किसानों का कहना था कि सरकारी रेट 5860 है, मगर 6000 में भी बोरी नहीं मिल रही। जिन डीलरों के पास खाद मौजूद है वो अपने नरखों पर फरोख्त कर रहे हैं। DAP लेने आए थे, वो मिल नहीं रही मक्की को डालने के लिए। 5850 रुपया रेट बोलते हैं, फिर भी नहीं मिलती। DAP चाहिए, एक एकड़ को 2 बोरी डालनी है मक्की को, एक पोटाश डालनी है, लेकिन मिलती नहीं, क्या करेंगे। किसानों का मजीद कहना था कि हुकूमत खाद पर सब्सिडी बढ़ाए ताकि छोटे किसानों को फायदा हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जवाद के साथ तैयब सैफ, टोबा टैक्सिंग। आधी दरख्वास्त गुजारों से जान छुड़वाने के लिए अहम इकदाम कर लिए गए। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से किसी मुलाजिम के खिलाफ दरख्वास्त देना बना दिया गया। बयान हल्फी जमा करवाना होगा। दरख्वास्त गुजार या गवाह के मुनहरिफ होने की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से, जो बताएगा। जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, तो यहाँ पर आधी दरख्वास्त गुजारों से जान छुड़वाने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। इसमें जो दरख्वास्त दी जाएगी उसके लिए 50 रुपये वाला स्टाम्प पेपर, फिर उसमें जो अपने साइन होंगे, ID कार्ड की कापी होगी, हल्फन जो इकरार किया जाएगा कि दरख्वास्त उसके मुताबिक दुरुस्त है। इसमें फिर उसमें गवाह का भी एक ID कार्ड नंबर होगा। फिर उसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि इस मुलाजिम के खिलाफ इस तरह से कोई भी शिकायत नहीं चल रही। अगर कोई दरख्वास्त गुजार या गवाह मुनहरफ होता है तो इस सूरत में उसके खिलाफ दफ़ा 182 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो इस सिलसिले में पर्पज़ इसका ये बताया जा रहा है कि जो आदि दरख्वास्त गुजार काम को मुतासर करते हैं और बार बार एंटी करप्शन या दूसरे तफ्तीशी इदारों को दरख्वास्तें इरसाल करते हैं, फिर उसके बाद मुबैना तौर पर पैसे लेकर बैठ जाते हैं या किसी भी दबाव में आकर बैठ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सरकार का, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या एंटी करप्शन का टाइम ज़ाया होता है। तो उससे छुटकारे के लिए अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि अब दरख्वास्तों पर बयान हल्फी लिया जाएगा और अगर कोई मुनहरफ होता है उसको एंड तक, तकमील तक नहीं पहुंचाता, तो फिर उसी के खिलाफ कार्रवाई। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग का इजलास हुआ। इजलास में मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन शोबा के ज़ेर एहतमाम झंग में मरियम नवाज़ की सेहतियाबी के लिए आज एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून खवातीन की जो कारकुनान थी वो शरीक थी और इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली डूडी ने भी इस तकरीब में शिरकत की। इस हवाले से खवातीन का क्या कहना है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा मैडम, आज की तकरीब में आपने दुआ भी की, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? जी, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वमन विंग का जो इजलास था, बुनियादी तौर पर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सेहतियाबी के लिए दुआया तकरीब के तौर पर मुनक़िद किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लीडर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो एक इस्तारा हैं जुर्रत और बहादुरी का, और एक अलम बरदार हैं वो अंधेरों को उजालों में बदलने का, और एक टॉर्च बेरर है मुल्क में से गुर्बत को ख़त्म करके मुआशी तरक्की की राह दिखाने का। और हमारी दुआ है कि हमारे लीडर जो है वो कोरोना जैसी मूजी मर्ज से अल्लाह ताला उनको सेहत याब करें और हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में से बिलखसूस और दुनिया में से बिलअमूम इस मूजी मर्ज का खात्मा हो। आमीन। अच्छा, बिल्कुल, मरियम नवाज कोरोना वायरस का शिकार है और इसी वाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग के ज़ेर एहतमाम एक दुआ तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। तमाम खवातीन का ये भी कहना था कि मरियम नवाज जो है वो एक चमकता हुआ सितारा है और उनको उम्मीद है कि वो अगर इक़्तिदार में आती हैं तो खवातीन के लिए। मुबशिर हसन नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद के ज़ेर एहतमाम EMR ऐप से मुतालिक LHPs की माहाना कारकर्दगी का जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से, जो बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से IRMNCH प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है। इस एप्लीकेशन में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अरशद भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, क्या क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं मुस्तकबिल में। सर बताइएगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो हुकूमत की जानब से जो मुतारफ़ करवाई गई है, इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है, क्या क्या प्रोग्राम इसमें ऐड किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
یہ EMR کے نام سے ایک نئی ایپ لانچ کی گئی ہے. اس میں فرق تو اتنا زیادہ نہیں ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ باقی جو ایپیں تھیں پہلے ہماری اینٹی نیٹل کی علیحدہ تھی, اس کی DMR کی علیحدہ تھی, اس طرح بچوں کو جو سیم ہے بچے انٹر کرتے تھے اس کی سیپریٹ تھی. ان سب کو مرج کر دیا گیا ہے, انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے ایک ہی ایپ میں, جس کا نام ہم نے رکھا ہے EMR رکھا ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم نے منتھلی میٹنگ کی ہوئی ہے. اس میں یہ 1 جولائی کو لانچ کی تھی. پچھلے مہینے کچھ نہ کچھ اس میں پرابلمز آئے ہیں, کسی کی ایپ اوپن نہیں ہو رہی تھی, کسی کے ایپ میں کوئی فالٹ آ رہا تھا. تو اس سلسلے میں آج میٹنگ کی گئی ہے تاکہ ان میں جو کمی بیشی ہے اس کو کمی کوتاہی کو پورا کیا جائے. اچھا سر, اس سے LHVs کو کیا فائدہ ہوگا اور جو مریض اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں ان کو اس ایپ کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو LHV کو یہ ہوگا کہ یہ ایک ہی سیٹنگ میں وہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹر ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں کر لیں گی. پہلے سارے کے سارے انڈیکیٹر سیپریٹ ہو جاتے تھے, وہ 5-7 سیپریٹ انڈیکیٹر بنتے تھے. اب ایک ہی سیٹنگ میں یہ 5-7 جو ہے انڈیکیٹر وہ ایک EMR میں جمع ہو جائیں گے. تو اس طرح وہ پیشنٹ کو تو وہ پہلے والا ہی فائدہ ہے, لیکن یہ ذرا شارٹ ہوگی ہے اور مختصر ہوگی. بالکل, حکومت کی جانب سے IRMNCH پروگرام کے تحت جو جاری پروگرامز ہیں اس کو ایک ہی اپلیکیشن میں نظام کر دیا گیا ہے, جس میں الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ اس ایپ کا نام رکھا گیا ہے, جس میں ماں بچے کی صحت کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اسپتالوں میں ڈیلیوری کیسز اور سیم بچوں کی تعداد کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا رہا ہے. اور LHVs کو پہلے ٹریننگ دی گئی, اب جو ہے وہ ان کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد کا کہنا ہے کہ اس اپلیکیشن کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر تمام جو انڈیکیٹرز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے. بہت شکریہ عبد القدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.